औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let's start today's session. I hope you all are good and in the best of your health. I pray to Almighty Allah that all of us would be in a very good health, alhamdulillah, inshallah. So what did we discuss last time? Can you remember? We did discuss Sharia rulings for Bay, isn't it? We were just discussing the Sharia rulings for Bay. So in which we did discuss 5 headings, I think, isn't it? So the rest of the headings will be discussed in today's class, inshallah. So let's begin with the new heading. So let me open this. So we had discussed up till certainty of price. So today we just gonna discuss the rest of the 4 headings that were just remaining: certainty of the delivery of the subject matter, halal goods, property of value, and conditional sale. Okay. So certainty of delivery of the subject matter. This is lecture number 7. In lecture number 6 we did discuss main pointation, specification, and certainty of price. So today is the lecture number 7, in which we just gonna discuss the rest of the 4 headings that were just remaining under the big heading of Sharia rulings for Bay. Okay, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो क्लास के आगाज़ में दुआ फरमा लीजिए, अल्लाह ताला हमारी इस क्लास को कबूल फरमाए, ना सिर्फ हमारी दुनिया आखिरत बल्कि हमारे माँ बाप की दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सर्टेनिटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। सर्टेनिटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास गाड़ी है, उनके पास गाड़ी है, उनकी गाड़ी चोरी हो गई, और जैसे ही गाड़ी चोरी हुई उन्होंने बेच दी। सही है। किसी ने उनसे पूछा भाई आपने कैसे बेच दी, कहने लगे भाई एग्जिस्ट तो कर रही है और जो है मेरी ओनरशिप में भी है। सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर हैं ओरिजिनल। तो बात यह है कि ये वाली कंडीशन है, सर्टेनिटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये पूरी नहीं हो रही तो वो बेच नहीं सकते। सही है। क्यों? क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग यू हैव टू बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर द सब्जेक्ट मैटर टू द नेक्स्ट बायर। ओके, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, ओके, so you have to be in a position to deliver the subject matter to the next buyer. Okay, so now if Mr. A's car was just stolen or hijacked, okay, so how can he just deliver the car basically? अब वो बोले नहीं, there is a 99% probability that I'll just get the car back. नहीं, ये 99% probability नहीं चलेगी, बल्कि ये होगा कि भाई कार मिल जाए उसके बाद आप बेच दें। सही है। तो यू हैव टू बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर द सब्जेक्ट मैटर टू द नेक्स्ट बायर। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए, आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप जो हैं डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बायर को दे दें। अब हमारी मिस्टर ए वाली एग्जांपल में उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, तो उनको बेसिक वो इस काबिल नहीं थे कि डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नेक्स्ट बायर को दे दें। सही है। तो ये है इसके अंदर कि this is the 7th condition, that if you are selling something you have to be in a position to deliver the subject matter to the next buyer. If you are not in a position to deliver the subject matter to the next buyer, so you cannot sell. Okay, in Sharia viewpoint. Okay, now the thing is, the next heading is halal goods. Halal goods. So halal goods, जैसे कि it reveals from the name itself, what you are selling it has to be halal. You cannot sell the haram goods. Okay, उसमें तफसील है बेसिकली। देखें, एक जुमला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो वो आप लिख लीजिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ आपको। थिंग्स which cannot be used except for a haram purpose cannot be sold out. Okay, things which cannot be used except for a haram purpose cannot be sold out. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? थिंग्स which cannot be used, जो चीज़ें इस्तेमाल ना हो सकें एक्सेप्ट फॉर अ हराम पर्पज़, हराम पर्पज़ के अलावा, तो उसको बेचना नाजायज़ है।
सही है। देखें दो एक कुछ देखें चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका दोनों यूज़ होता है, एक हराम पर्पस भी यूज़ होता है, एक हलाल पर्पस भी होता है। सही है। फॉर एग्जांपल छुरी, इफ़ यू आर सेलिंग नाइफ, फाइन, सो देयर इज़ फाइन, आई मीन देयर इज़ बोथ द पर्पस ऑफ ऑफ जस्ट द नाइफ बेसिकली। शरीयत ने हर नाइफ बेचने वाले पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली कि ग्राहक से पूछे, कस्टमर से पूछे कि भाई तुम इससे आलू काटोगे या किसी का खुदा न खास्ता गला काटोगे। सही है। शरीयत ने जिम्मेदारी हर नाइफ बेचने वाले पे नहीं डाली। लेकिन अगर नाइफ बेचने वाले को इस बात का पहले से मालूम हो कि मैं जिस शख्स को नाइफ बेच रहा हूँ वो सामने वाले का गला काटेगा, 100% मालूम हो, तो जाहिर है इसको नहीं बेचनी चाहिए, ये नाजायज़ होगी। सही है। तो ये इसमें ये तफसील है बेसिकली। Fine, things which cannot be used except for a haram purpose, which fine cannot be sold out. So if the knife seller knows in advance that as soon as I sell the knife to this person, he's just gonna kill the other person, so this knife selling would not be okay then okay. So now the thing is, this knife selling would not be okay, would not be permissible in the eye of Sharia if you know in advance. Okay. Now the thing is, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो चीज़ों अब अगर एक ऐसी चीज़ है जैसे मैंने लिखवाया थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज्ड, वो चीज़ें जो यूज़ ही ना हो सके एक्सेप्ट फॉर हराम पर्पस के अलावा, कैन नॉट बी सोल्ड आउट। फॉर एग्जांपल गिटार। अब गिटार का इस्तेमाल जो है वो जो है हलाल पर्पस के लिए तो हो ही नहीं सकता है। सही है। लेकिन अगर कोई सेलर है गिटार की दुकान है उसकी, और वो ये बोले नहीं मैं तो इस वजह से बेच रहा हूँ कि भाई मैं ये गुमान करता हूँ कि जो कस्टमर्स ख़रीदेंगे इसको गिटार को बजाएंगे नहीं, बल्कि जो है इसका जो है तार काटेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे और मांझा बना के पतंग उड़ाएंगे इसकी, तो भाई ये गुमान सही नहीं है। सही है। वजह उसकी है कि गिटार का बेसिकली जो है वो एक ही यूज़ है और जो है और वो नाजायज़ है, क्योंकि गाना बाजा नाजायज़ है। देखें जिस कुरान शरीफ ने रिबा की ममानियत की है उसी कुरान शरीफ ने गाने बाजी की ममानियत की है। जब हम कुरान शरीफ की वजह से रिबा से बचते हैं तो हमें उसी कुरान शरीफ की वजह से गाने बाजे से भी बचना चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है। सो रिबा इज़ नॉट ओनली वन थिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड इन शरिया, गाना बाजा इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ओके, दैट्स वाई that I mean the things which cannot be used except for haram purpose cannot be sold out, for example guitar. ओके, मैंने इसमें कुछ आपको तफसील अर्ज़ कर दी। आपको कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे माइंड में तो वो इंशाल्लाह हमारी कल क्लास है, इंटरैक्टिव क्लास है, एसिंक्रोनस सेशन है, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको आसानी हो तो व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। सही है। वॉइस मैसेज के थ्रू। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू में ये है कि फॉर एग्जांपल आप माजू से आपने क्लास ली, आप घर जा रहे थे और आपने ज़मीन से मट्टी उठाई और जो है वो जो है मिस्टर ए बेचने लगे, कहने लगे 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी। तो भाई मिस्टर ए को चाहिए कि भाई कोई पर्पस ऑफ वैल्यू चीज़ बेचें, इसका कोई प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू कोई चीज़ बेचें, मतलब एक उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मीन्स इसका क्या मतलब है, उर्फ में मतलब मार्केट में माशरा उसको जो है वो उसको जो है वैल्यू देता हो। सही है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो उसको बेचा नहीं जा सकता, जैसे कि मट्टी। सही है। मतलब मनोमन मट्टी के पीछे से हम जो उसके ऊपर से हम गुजर जाते हैं लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। लेकिन देखें अगर इसी मट्टी को अगर प्रोसेस कर दिया जाए जो कि घरों की तामीरात में यूज़ होती है तो फिर उसकी बाइंग एंड सेलिंग जायज़ होगी। सही है। क्योंकि उसको वो एक प्रॉपर्टी वैल्यू बन गई है, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू बन गई है प्रोसेसिंग के थ्रू। लेकिन मैं तो उस मट्टी की बात कर रहा हूँ कि जिस पे हम ऊपर से चल के गुजर जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता है। सही है। वजह उसकी ये है शायद कि देखें ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये उकूद मुआवजा और उकूद गैर मुआवजा में से कौन सी कैटेगरी में आता है आप बताएं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मिड टर्म से पहले। There are two types of contracts. Number one is the remunerative contract. The other one is the non-remunerative contract. Remunerative contract can also be called the compensatory contract or bilateral consideration contract. उकूद मुआवजा। तो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उकूद मुआवजा में से आता है और उकूद मुआवजा में क्या है, बायलैटरल कंसिडरेशन। तो अगर ज़ाहिर है मुआशरा इस मट्टी को कोई अहमियत नहीं देता तो उसके लिए कंसिडरेशन देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। सही है। तो जिस चीज़ की प्रॉपर्टी और वैल्यू ना हो तो उसकी कोई कंसिडरेशन ही नहीं होगी, और जब कंसिडरेशन ही नहीं होगी
तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, वो खुद मुआवजा कैसे होगा। सही है। तो ये कोई भी चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू ना हो उसको हम बेच नहीं सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द अनकंडीशनल सेल। अनकंडीशनल सेल, देखिए अनकंडीशनल सेल में ये है कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, मैं लिख भी देता हूँ। कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या होती हैं? ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये पुराना लेक्चर है, ये मैंने लिख दिया था। कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट whether the buyer or seller imposes certain conditions। सही है, conditions to the contract, कि before entering into a contract either the buyer or the seller imposes certain conditions onto each other, that is called conditions to the contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या तो बायर सेलर पे कुछ कंडीशंस डाले या सेलर बायर पे कुछ कंडीशंस रखे, तो इसको बोलते हैं कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं है, उससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान पे जाते होंगे और उधर लिखा होता है बाज़ औक़ात कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, है ना, ऐसा लिखा होता है ना कभी कभार, या ऐसा भी लिखा होता है उधार बंद है। इसका ये मतलब हुआ कि सेलर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, आपको चीज़ बेचने से पहले आपके ऊपर ये कंडीशन लगा रहा है कि भाई मुझसे अगर मामला करोगे तो नक़द करोगे, मैं कैश सेल करता हूँ, क्रेडिट सेल नहीं करता हूँ। सही है, इसका ये मतलब ये कंडीशन है बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेलर ने लगाई है, वो स्टिकर चिपका कर अपनी दुकान में, है ना। इसी तरह बायर भी लगा सकता है सेलर पे। बायर ये क्या बोल सकता है कि भाई मैं जब तक आपसे चीज़ नहीं ख़रीदूँगा, जब मामला नहीं करूँगा, जब तक कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है मेरी प्रेमिसेस पे नहीं देंगे। सही है, तो ये कंडीशंस भी, मतलब ये भी कंडीशन ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट में अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन बायर सेलर को ये बोल रहा है कि भाई मैं आपसे चीज़ जब तक नहीं ख़रीदूँगा, मैं आपसे मामला जब तक नहीं करूँगा, जब तक कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स आप जो है मेरी प्रेमिसेस पे नहीं देंगे। तो एक मैंने आपको कंडीशन बताई, सेलर ने इम्पोज करी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले, और एक मैंने कंडीशन बताई जो बायर ने इम्पोज करी सेलर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले। दोनों कंडीशन जायज़ हैं। सही है। देखिए कुछ कंडीशंस जायज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस नाजायज़ होती हैं। अभी दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर टू डिबेट, बेसिकली दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर टू डिस्कस राइट नाउ ओवर हियर, दैट व्हाट आर द कंडीशंस फाइन विच आर परमिसिबल एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर इम्परमिसिबल। सही है, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे इसको। ये बेसिकली, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि नाजायज़ है कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए बी से ये बोले कि भाई मैं तुम्हें चीज़ जब बेचूँगा जब तुम मेरे भाई को फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो वो जॉब दिलवा दोगे। या बायर सेलर से ये बोले कि मैं तुमसे चीज़ जब ख़रीदूँगा कि जब तुम जो है मेरे बेटे को फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवा दोगे। तो देखें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाने का इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये कंडीशन नाजायज़ है। लेकिन जो पिछली दो कंडीशंस बताई थी वो उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ कॉन्ट्रैक्ट से था, कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत कर रहा था वो, बात से हो रही है, तो इस वजह से वो दोनों जायज़ थी। तो बहरहाल इसकी तफसील है, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है। सही है, कि कौन सी कंडीशन जायज़ हैं, कौन सी कंडीशन नाजायज़ हैं, इसका ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। हम इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा क्या है, शरिया रूलिंग्स फॉर पे। सही है, इसमें तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। अब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ आ गई थी, कंडीशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा टॉपिक वही दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल सेल। देखिए अनकंडीशनल सेल में फिर मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन लिख दी है मैंने। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट जब हमें पता चल जाएगा तो ज़ाहिर है अनकंडीशनल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्मिनेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली। दो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल एक दूसरे पे जब होते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए
तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए, इसको बोलते हैं कंडीशनैलिटी, जो कि नाजायज़ है। इसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है दो उक़ूद को एक अक़द में जमा ना करो। मैं इसको लिख भी रहा हूँ, टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड। टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड। सही है, ये हदीस का मफ़हूम है जो मैंने लिखा है, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया है। सही है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है दो उक़ूद को एक अक़द में जमा ना करो। टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दो उक़ूद हैं या दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो एक दूसरे पे कंडीशनल नहीं होने चाहिए। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा कि अगर एक ख़त्म हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशनैलिटी। सही है, तो कंडीशनैलिटी नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। इसकी मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स द अदर कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। सीज मतलब ख़त्म हो जाना, तो एक ही बात है, चाहे पहली डेफिनेशन है या दूसरी डेफिनेशन है, दोनों एक ही बातें हैं। बात वाज़ेह हो रही है? मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है कि अगर जैसे मिस्टर ए हैं, सही है, मिस्टर ए ने जो है, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 1 मिलियन रुपए मिलाया, या चलें 10 मिलियन रुपए मिलाया। सही है, मिस्टर बी ने भी 10 मिलियन रुपए मिलाया। सही है, तो टोटल कितने हो गए? 20 मिलियन। टोटल कितने हो गए? 20 मिलियन। अब इस 20 मिलियन का इन्होंने परचेज़ कर लिया, हाउस परचेज़ कर लिया। सही है, ए ने 10 मिलियन मिलाया, बी ने 10 मिलियन मिलाया, तो दोनों ने पैसे मिला के 20 मिलियन का घर परचेज़ कर लिया। तो घर में एक क्या हो गई? शिरकत हो गई ना। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिरकत हो गई ना, क्योंकि ए भी शरीक हैं, बी भी शरीक हैं, दोनों ने पैसे मिलकर बनाए, मतलब ये घर बनाया, ये घर लिया है फॉर एग्जांपल। सही है, ये दोनों मतलब ए ने 10 मिलियन मिलाया, बी ने 10 मिलियन मिलाया, और दोनों ने पैसे मिला के घर ख़रीद लिया, तो घर में शिरकत हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिरकत हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना बेसिकली है। अब क्या हुआ? अब फॉर एग्जांपल इस घर में 10 रूम है। इस घर में कितने रूम हैं? 10 रूम्स हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं 8 मिलियन कर देता हूँ और इसको 2 मिलियन, ताकि समझने में आसानी हो। सही है, अब ये 10 मिलियन का घर ख़रीद लिया इन्होंने, 8 मिलियन इन्होंने मिलाए, 2 मिलियन इन्होंने मिलाए, 10 मिलियन का घर हो गया। तो अब ये 10 रूम है फॉर एग्जांपल, तो इसमें से 8 रूम्स किसके हुए? 8 रूम्स। इसमें से 8 रूम्स किसके हुए? 8 रूम्स मिस्टर ए के हो गए। ये बाकी के 2 रूम्स किसके हो गए? मिस्टर बी के हो गए। लेकिन शिरकत का ये मतलब होता है कि मिस्टर ए के 8 रूम्स में मिस्टर बी शरीक और मिस्टर बी के 2 रूम्स में मिस्टर ए शरीक। तो मैंने ये सेग्रीगेट क्यों किया है? आई हैव सेग्रीगेटेड द इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ द रूम्स बेसिकली। सही है, शिरकत का मतलब ये होता है कि मतलब कि तेरे हिस्से में मैं शरीक और मेरे हिस्से में तुम शरीक। इसका ये मतलब होता है शिरकत का। बात वाज़ेह हो रही है कि मिस्टर ए के हिस्से में बी शरीक, मिस्टर बी के हिस्से में ए शरीक। लेकिन मैंने ये सेग्रीगेट क्यों किया है? बिकॉज आई हैव सेग्रीगेटेड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन। ओके, इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन आई हैव जस्ट सेग्रीगेटेड इट। तो अब इसमें अब क्या हुआ? मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि भाई जो है आप जो है मुझे ये पूरा घर चाहिए। तो मिस्टर ए कहेंगे, अब जाहिर है ये इनके तो मिस्टर ए की रिहाइश भी इसका हक़ है। सही है, मिस्टर ए की रिहाइश भी तो हक़ है ना इस घर में, और मिस्टर बी की रिहाइश का भी हक़ है। लेकिन मिस्टर बी को सारा का सारा घर चाहिए फॉर एग्जांपल, उनकी फैमिली बड़ी है और उनको पूरे के पूरे 10 कमरे ऑक्यूपाई करने हैं,
तो मिस्टर ए कहते हैं कि चलो मैं अपने 8 कमरे रेंट पे दे देता हूँ, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इजारा, रेंटिंग। सही है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया रेंट का। ये बात तो दोनों बातें समझ में आई हैं। मतलब ये कि मिस्टर ए ने जो है वो 8 मिलियन रुपए मिलाए और मिस्टर बी ने 2 मिलियन रुपए मिलाए और 10 मिलियन का घर ख़रीद लिया। तो घर ख़रीदेंगे तो शिरकत हो जाएगी, और जब शिरकत हो गई तो 8 रूम्स किसके हो गए, मिस्टर ए के, और 2 रूम्स किसके हो गए, मिस्टर बी के। तो शिरकत का मफहूम तो ये होता है कि मिस्टर ए के हिस्से में मिस्टर बी शरीक और मिस्टर बी के हिस्से में मिस्टर ए शरीक। लेकिन मैंने ये सेग्रीगेट क्यों किया है, आई हैव सेग्रीगेटेड एट वाई, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड that there is an investment proportion, like 80% pertains to Mr. A and rest of the 20% pertains to Mr. B basically. Okay, now Mr. B wants to reside or wants to occupy the whole house, that is all the 10 rooms. So now in this case Mr. A would rent 8 of his rooms basically to Mr. B. सही है, तो इजारा का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि जब इजारा ख़त्म हो जाए, किसी वजह से, फॉर एग्जांपल इजारा ख़त्म हो जाता है बाद में, 2 साल बाद इजारा ख़त्म हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि शिरकत भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सही है, जो कि नाजायज़ है शरीयत में। मतलब शरीयत कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा अलग हो, अलग पेपर पे हो, और शिरकत का कॉन्ट्रैक्ट अलग पीस ऑफ पेपर पे हो, आपस में दोनों टकराए नहीं। मतलब ये कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहना चाहिए। सही है, मैं आपको सोशल लाइफ से भी एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे सोशल लाइफ होती है, अब सोशल लाइफ में एक खालाजाद भाई हैं और खालाजाद बहन है। अब दोनों खालाजाद भाई खालाजाद बहन है फॉर एग्जांपल, अब इनमें अक़्द निकाह हो जाता है तो इनका स्टेटस चेंज हो जाता है, ये लोग स्पाउस बन जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से डिवोर्स हो जाती है, सही है, तो इनका जो है वो खालाजाद भाई बहन का रिश्ता तो बाकी रहता है, इनका ये मियाँ बीवी का रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या खालाजाद भाई बहन का भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो बाकी रहता है, वो अलग है। सही है, मियाँ बीवी का रिश्ता अलग था, दोनों चीज़ें अलग हैं, रिश्ते अलग हैं। तो भाई जब इस्लाम में जो है वो सिर्फ सोशल लाइफ की हमारे पास जो है वो तालीमात नहीं है, बल्कि कमर्शियल लाइफ की भी हैं। सही है, तो हमारे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें भी तालीमात हैं, और जो हमारे जो बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी तालीमात हैं। तो जिस तरह यहाँ पर मिस्टर ए जो खालाजाद भाई बहन के दरमियान तलाक़ होने की वजह से अब जब वो पहले उनके अक़्द निकाह हुआ, मियाँ बीवी बने, स्पाउस बने, अब वो उनमें तलाक़ हो गई तो खुदा न खास्ता, तो अब जो क्या हुआ, ये मिस्टर ए और बी का ये वाला मियाँ बीवी का रिश्ता तो ख़त्म हो गया, तो क्या खालाजाद भाई बहन का भी रिश्ता भी ख़त्म हो गया? जवाब है नहीं, वो अलग है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे शिरकत में 2 रिश्ते हैं, एक शरीक 1 है और दूसरा शरीक 2 है, और इजारा में 2 रिश्ते हैं, एक को लेसर बोलते हैं और दूसरा है लेसी। सही है, और शिरकत में दो पार्टनर्स हैं, शरीक 1 और शरीक 2, ए और बी अलग अलग हैं। वो शरीक 1 दोनों शरीक हैं बेसिकली उस प्रॉपर्टी में। तो अगर लेसर और लेसी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो शरीक का जो है रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बाकी रहेगा, मतलब शिरकत बाकी रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल। कंडीशनल क्या होता कि इजारा ख़त्म होने से शिरकत भी ख़त्म हो जाती। सही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है 2 ऊँट को एक अक़द में जमा ना करो। सही है, अगर आपने 2 ऊँट को एक अक़द में जमा कर दिया, मतलब एक ही पीस ऑफ पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिरकत भी कर दिया और इजारा भी कर दिया। सही है, एक ही पीस ऑफ पेपर पे पहले शिरकत के क्लॉजेज लिख दिए 4, उसके बाद 4 आपने इजारा के क्लॉजेज लिख दिए। तो अगर इजारा का कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई तो जाहिर है शिरकत भी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस वजह से शरीयत ये कहती है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, ये अलग वो अलग, एक पीस ऑफ पेपर पे इजारा हो, दूसरे पीस ऑफ पेपर पे शिरकत हो, ताकि कंडीशनैलिटी ना हो। बिकॉज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर होंगे तो 2 ऊँट को एक अक़द में जमा करने का गुनाह मिल जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था पहली क्लास में
कि रिबा इज़ नॉट ओनली वन थिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड इन शरिया, गरज़ कसीर इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड, मैसर एंड क़िमार इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड एंड अदर थिंग्स विच फाइन आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। सो अदर थिंग्स में एक पूरी लिस्ट है जिसमें से एक ये है कि दो खूद को एक वक्त में जमा ना करो। सही है, क्योंकि अगर आपने दो खूद को एक वक्त में जमा कर दिया मतलब एक ही पीस ऑफ पेपर पे शिरकत भी कर ली और इजारा भी कर लिया, तो अगर इजारा ख़त्म हुआ तो शिरकत भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो ये कंडीशनैलिटी हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अनकंडीशनल। फाइन, मतलब अगर एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ख़त्म ना हो। फाइन, व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स द अदर कॉन्ट्रैक्ट वुड रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म बेसिकली। ओके, इसका ये मतलब हुआ। तो मैंने आपको ये चारों बता दिए हैं। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्मिनेशन ऑफ विच और द टर्मिनेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ द अदर विच इज़ प्रोहिबिटेड इन शरिया। सही है, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अनकंडीशनल होने चाहिए। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कल की क्लास जो हमारी एसिंक्रोनस सेशन है उसमें भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। सही है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।